Sir, I rise to dwell on the motion of thanks on presidential address, which is consisting of 32 pages and 39 paras, according to the Article 87/1 of our Constitution. Sir, I do not understand the few political jargon that has been enshrined in the presidential address. First of all, what is called Viksit Bharat? What does it mean by Viksit Bharat? I don't have any distinct idea of it. And when should we wait till 2047 to obtain Viksit Bharat? That also I do not know. I do not even know that till citing the Viksit Bharat, whether all of us will be alive or not. So naturally, I am little bit eager to know about the parameter, about the definition of what is called Viksit Bharat. Sir, in the milieu of highfalutin religious triumphalism, I thought it prudent to cite a few lines from no less than one of the greatest Hindu monk of India, Sri Vivekananda, Narendranath Datta. In the year 1893, 11 September, he joined in the Parliament of Religions in Chicago. There, he preached the idea of India, the idea of Hinduism to the people of the globe. Sir, he said that if the Parliament of Religions has shown anything to the world, it is this. It has put to the world that charity, holiness, and purity are not the exclusive possession of any church in the world. Every system has produced men and women of the most exalted character. In the face of this evidence, if anyone dreams of the exclusive survival of his own religion and destruction of every religion will soon, I pity for them from the bottom of my heart and point out to them that upon the banner of every religion will soon be written in spite of the resistance, help, not fight. Assimilation, not dissension. Peace and harmony, not destruction. Sorry, help, not fight. Assimilation, not destruction. Harmony and peace, not dissension. Sir, Swami Vivekananda proudly said to the people of the world that I am proud to belong to a religion which has taught the world universal acceptance and tolerance, which has taught the world not only the universal acceptance and toleration, but also believe that all the religions in the world are true. I am proud to belong to the nation which has sheltered all the persecuted religious persons and refugees to these nations. Sir, that is the country that we have inherited. Sir, now the situation has been turning in such a rapid manner that it has been created some sorts of apprehension and fear among the minority populations of our country. Sir, he had warned us
that secularism, bigotry, and its horrible descendant fanaticism have long possessed this beautiful art. It has filled the art with violence, drenched it with human blood, sent nations to despair, destroyed civilizations. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is today. Sir, we should not forgotten these homilies, this noble thought that was preached by Swami Vivekananda. Sir, he suggested that we are all Indian. We are all Indian. He says that I am an Indian. The ignorant, the poor and destitute, the Brahmin, the Pariah, all are Indian. Indian gods and goddesses are my God. Indian society is my life. Indian society is the cradle of my infancy, the pleasure garden of my youth, the sacred heaven, Varanasi, in my old age. Indian soil is my heaven. India's good is my good. Sir, that is why I thought it prudent to warn those honorable members who are illuminating the discussions in this august house. Sir, here in the presidential speech which has been referred, that the new parliament building, magnificent building, has been constructed at the beginning of Azadi Ka Amrit Kal. Sir, I am in agreement with my sister from Bengal, who has very distinctly stated in a sorrowful manner also that hundreds of our MPs have been expelled from this august house for the reason best known to the government. Sir, I would urge upon you, sir, that the house, the august house, should not be turned. Sir, the august house should not be turned into a throttling chamber of democracy. So the reason behind it, that parliament means a panchayat of debate, discussion, disagreement, and dissent. This is the laurels of the parliamentary system of our country that should not be sunk into oblivion. Sir, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ. राजनाथ सिंह को देखकर मुझे ये लगा कि एक बात कहना जरूरी है. हम सारे यहाँ गरीबों के बारे में चर्चा करते हैं, किसानों के बारे में चर्चा करते हैं, बेरोजगारी के बारे में चर्चा करते हैं, करना वाजिब है. लेकिन मैं एक दूसरे और निगाहों खींचने की कोशिश करते हैं. सर, ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस में हमारा सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में एक लफ्ज नहीं कहे गए. मैं पूछना चाहता हूं हमारा रक्षा मंत्री जी को, बताइए लद्दाख की हाल क्या है. आपने कहा था कि स्टेटस को एंट्री को रेस्टोर करेंगे, यथास्थिति को बहाल करेंगे. कहां बहाल हुई है. सर, दिन पे दिन लद्दाख की हालत बुरा होते जा रहे हैं. 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अतिक्रमण हो चुके हैं. ये 20 राउंड मिलिट्री टॉक्स हुए हैं, 28 राउंड डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए हैं. आज वहां चरवाहों ने जाने नहीं पाते हैं अपना जमीन पे, वो चराई करने नहीं जा पाते हैं. लद्दाख के लोगों को पूछिए क्यों ऐसा हो रहे हैं, क्यों आप चुप बैठे हैं. अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हाल दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं. जब गलवान घाटी में इस तरह की घटना घटी, जहां हमारा 20 जवानों को शहादत देने पड़ी, आपने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, कोई नहीं घुसा, कोई घुसा हुआ नहीं है.
इसमें सबसे बड़ा अगर हिम्मत किसी को मिली है तो चाइना को मिले। आप देखिए, आपकी जमाने के पूरे 2014 से लेकर आज तक एक के बाद एक चाइना पॉलिसी में आप फेलियर और फेलियर अब दर्शाते हैं। 2014 में देखो, 2017 में देखो, 2019 में देखो, 2022 में देखो, कभी डोकलाम, कभी लद्दाख, कभी अरुणाचल, एक के बाद एक देखते जाइए। हमारे फॉरेन पॉलिसी में और सिक्योरिटी हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। आपको ये नहीं सोच आ रहे हैं आज मालदीव में क्या हो रहे हैं? अब मालदीव में क्या हो रहे हैं? इंडिया आउट नारा लगाते हुए एक चुनाव होते हैं और आपका अजीत डोभाल कहां थे उस समय 1966 में? सर मैंने आपसे इजाजत लिया था, सर मैंने आपसे इजाजत लिया था कि मैं सिर्फ पॉलिसी में बात करूंगा सर, और कुछ नहीं। राजनाथ सिंह जी, पिछले कई सालों से बार बार हम लोग गुहार लगाते आते हैं कि चाइना के बारे में चर्चा हो, चर्चा हो, चर्चा हो। चाइना आज स्टिंग ऑफ पाल की चलते हमें घेरेबंदी कर रहे हैं। आपको ये नहीं देख पाते हैं आप? अरे मालदीव हमारा हाथ से निकल जा रहे हैं। मिनी कॉय से 70 नॉटिकल किलोमीटर दूर में है मालदीव। आपको 8 डिग्री चैनल की पता है? 8 डिग्री चैनल मिनी कॉय से मालदीव के अंदर चलते हैं। लाक्षाद्वीप से मिनी कॉय के अंदर 9 डिग्री चैनल और मिनी कॉय से मालदीव 8 डिग्री चैनल। भूगोल आप देख लीजिए। हमारे लाइन, हमारे सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन जिसको कहता है स्लॉक, एक तरफ हरमुज, एक तरफ मलक्का, अरे एक तरफ हरमुज, एक तरफ मलक्का। मैं कोई मानगढ़ंत बात नहीं करते। राजनाथ सिंह जी भरोसा रखो, मैं भी एक शेयर होल्डर हूं इस सरकार की, देश की। मैं जो कहे जाते हैं, ये औपचारिक तरीके से जो कहे जाते हैं, पेपर में कहिए, टीवी में कहिए, उसी को मैं जिक्र करते हैं। सर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बड़ी दावे के साथ कहते हूं, मेरा नेत्री यहां मौजूद है, देश की रक्षा के लिए सर एक कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ा है। आप निश्चित रहिए, आप सब लड़ते जाइए। आप लड़ते नहीं, इसीलिए हम आपको जिक्र करते, लड़ते नहीं हो। आपको लगता है डरपोक होते जा रहे हैं, इसलिए हमें चिंता हो रहे हैं आप यार। उसके बदले हम कहते कि नेकलेस ऑफ डायमंड बनाता है, लेकिन असरदार नहीं होते हैं। इसलिए आप और तेजी से काम करो। सारे विपक्ष आपके साथ खड़ा होंगे। ये बड़ी बड़ी बात किए जाता है। उस दिन तो कहते कि $7 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बन चुके हैं। कहां से आपके इतने ट्रिलियन डॉलर आते हैं मुझे पता नहीं। शायद इस सरकार के ऊपर हथियार बरस रही है, हो सकता। शायद सरकार की कुछ अलग से तिलस्मा हासिल हुए हैं। कहां से ये $7 ट्रिलियन की बात करते हैं मुझे पता नहीं। मैं एक बात कहना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए 5th इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी बताए जाते हैं, लेकिन आप बताइए पर कैपिटा हमारे देश में पर कैपिटा जीडीपी क्या है? आप बताइए पर कैपिटा जीडीपी क्या है हमारा देश में? आज 2023 में पर कैपिटा जीडीपी $2600। अब जिस दो देश को किनार करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जर्मन और जापान, जर्मन के पर कैपिटा जीडीपी के कितने जानते हैं? $52,800। जापान के $33,950। आप $2,600 लेकर बड़ा फुटानी कर रहे हैं कि मैं क्या ना क्या कर दिया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को गुमराह करने की अगर कोशिश करेंगे, हम जरूर विरोध करेंगे आप लोगों को। देखिए, ये बड़ी जोर शोर से हमारे देश में अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सत्ता पक्ष। इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं सारे हिंदुस्तान के लोगों को, 2014 साल में चुनाव हुआ था। उस समय लोगों को बरगलाने के लिए ये कहे गए थे कि अच्छा दिन लाएंगे, 25 लाख हर लोग की जेब में, 15 लाख रुपया हम बाहर से काले धन लाकर हम देंगे। चुनाव खत्म हो गए, सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद आपका नेता कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला है। दूसरी बारी आ गया 2019 में, पुलवामा में हमारे 60 जवान शहीद हुई। वहां के गवर्नर मालिक साहब ने कहते थे कि वहां के सरकार की लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुई थी। मैं नहीं, मालिक साहब गवर्नर कहते थे। उसके बदले में आप
बालाकोट में हमला किया, सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारे देश बदला ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिला, क्या हुआ ना हुआ कोई जानकारी नहीं मिला। हमें चश्मदीद गवाह के साथ ये देख पाए हैं कि हमारे एक MiG-21 को वहाँ क्रैश होने देखा, हमारे एक C-17 हेलीकॉप्टर को हम लोग तबाह होते देखा फ्रेंडली फायर में, उसमें 6-7 हमारे एयर पर्सनल उनको हम शहादत होते हुए देखा। कहे गए थे कि पाकिस्तान के F-16 को हम मार गिराया, पता नहीं कहाँ गिराया। और बालाकोट में असलियत क्या हुई आज तक पता नहीं, क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं आज तक। उल्टे तरफ से सारे इंटरनेशनल एजेंसी कहते हैं कि बालाकोट में ऐसा कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं हुई। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, एनालिसिस ऑफ ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी बाय द अटलांटिक काउंसिल्स डिजिटल फोरेंसिक लैबोरेटरी, San Francisco based Planet Laboratories, European Space Imaging and Australian Strategic Policy Institute has concluded that India did not hit any targets of significance on the Java hilltop site in the vicinity of Balakot. मैं नहीं कहते, मतलब बालाकोट की घटना आज भी लोगों के सामने स्पष्टीकरण नहीं हुई है। बालाकोट में क्या हुआ है, अगर हो सके तो आप बताइए। हमारे और एक कद्दावर मंत्री आ गए अमित शाह जी, बता सकते कि बालाकोट में असलियत हुआ क्या था। ये आज तक इसका जानकारी नहीं है। फिर नया चुनाव आ रहे हैं, जब चुनाव दरवाजा खटखटा रहे हैं तो आप प्रभु राम जी की शरण ले रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। प्रभु राम जी की शरण लेना कोई गुनाह नहीं। आप कहते कि राम राज्य हम लाके देंगे। देखिए महात्मा गांधी को जिस दिन गोली से भून दिया गया था नाथुराम गौडसे नामक एक व्यक्ति द्वारा, उस दिन भी महात्मा गांधी देहांत लेते हुए उस समय कहा था, हे राम, मतलब राम को सब शरण करते हैं। एक राम जो दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम है जो जगत पसेरा, एक राम है जगत से न्यारा। तो राम को हम सब मानते हैं, ऐसा नहीं। आप राम का आपका पेटेंट मत बनाइए, राम आपका चुनावी पेटेंट ना हो, ये मैं चाहता हूं। राम सबका है। और हमारा देश हिंदुस्तान 4 वेद है, यहाँ 4 वेदों हैं, मिलियंस ऑफ गॉड्स, लाखों की भगवान है हमारा देश में, 18 उपनिषद है, 2 महाकाव्य है। ये देश कोई छोटी मोटी देश नहीं। यहाँ आप लोग इस तरीके की राम को अपना पेटेंट बनाने की कोशिश ना करें तो लोग आपको धार्मिक कहेंगे। राम को पेटेंट मत बनाइए, राम को चुनावी उपकरण मत बनाइए, राम को राम की जगह रहने दीजिए। महात्मा गांधी कहते थे इन 1929, महात्मा गांधी कहा था, बाय राम राज्य आई डू नॉट मीन हिंदू राज, आई मीन बाय राम राज्य डिवाइन राज, द किंगडम ऑफ गॉड। फॉर मी राम एंड रहीम आर वन एंड द सेम डेटी। मैं इसलिए कहता हूं, जानते हैं, आज हमारा साथी हसन साहब कहते थे अच्छा ठीक है राम मंदिर बन गए, अभी ज्ञान वापी लेकर चर्चा शुरू हो गए, अभी मथुरा लेकर चर्चा शुरू हो गए। तो हमारे देश में राजनाथ सिंह जब ज्ञानी व्यक्ति है, हमारा देश में 20 करोड़ मुसलमान है, उन लोगों का मन में डर पैदा ना करो तो बेहतर होगी। आरएसएस बोलते हैं कि हम राम जन्मभूमि के बाद हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन लोगों के अंदर शंका है, कोर्ट से उनकी पक्षराय चली जाएगी। ये मैं नहीं कहते, लोगों के मन में यह शंका है। तो मैं ये कहना चाहते कि आप कानूनों के दौरान आप एक कानून लाइए, जिस कानून के दौरान इस तरीके की और कोई अतिक्रमण ना हो, नहीं तो इसका बड़ा बुरी असर होने वाला है। सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री ये इसको संज्ञान में लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को संज्ञान में लिए हैं। प्लीज सर, हमारे आजू बाजू में सब देश में ऐसा नहीं कि हर जगह हिंदू है, मुसलमान भी रहते हैं, उनको मन में पीड़ा हो, ऐसा काम ना करे तो देश के लिए बेहतर होगी। मैं सबको अच्छा सलाह देना चाहते हैं और कुछ नहीं, मैं अच्छा सलाह देना चाहते हैं कि ये हमारा फर्ज बनते हैं सरकार को अच्छा सलाह देना। सर मैं ये सरकार को और एक बात करना चाहते हैं
कि ये कहते हैं कि हम बड़ा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 नंबर स्थान पे हम आ पहुंचे। अच्छा, दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ करने वाला सरकार है, लेकिन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में कहे जाते हैं कि इंडिया रैंक्स 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। लीस्ट हैप्पी नेशन, जिस देश में सुख नहीं है, जिस देश में दुख ज्यादा है, उसको कहते हैं कि लीस्ट हैप्पी नेशन। लीस्ट हैप्पी नेशंस इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 136 इंडिया रैंक 126। ये मान के चलो। पर कैपिटा इनकम सारे दुनिया में 197 देश के अंदर पर कैपिटा इनकम में हमारा हालत क्या है जानते हैं? 142। लोगों को कहिए कि भाई जेब में हाथ करके रखो और कहो कि मोदी तुमको क्या दिया, बीजेपी सरकार ने क्या दिया। जेब में हाथ रख के कहो। आज तक आपको हिम्मत नहीं हुई पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की आंकड़ा पेश करने के लिए, हिम्मत नहीं हुई आपका ये हिम्मत नहीं हुई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहते हैं आउट ऑफ 180 इंडिया स्टैंड 161। मतलब हमारे देश में मीडिया वालों को आजादी नहीं है, दिन पे दिन वो आजादी खतरे में जा रहे हैं। तो एक डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मीडिया को आजादी चाहिए, लोगों को आजादी चाहिए। सारे देश में हर समुदाय के लोगों के बीच एक शांति की माहौल, एक निश्चित जिंदगी की माहौल बनाना चाहिए। अगर ये आप ना बना पाते तो देश आगे नहीं जा पाते। सर, हमें बहुत कुछ करना है। हमें राजीव जी कहते थे कि हमारे देश में एक मॉडर्न इंडिया होने के लिए हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति करना चाहिए। वो करके दिखाइया। वो कहते थे मेरा भारत महान, और मेरा भारत महान के चलते उन्होंने अपना रास्ता अपनाते हुए देशवासियों को भरोसा दिया था। मैं उनका एक कोट करना चाहते हैं, वी कैनॉट एंड विल नॉट रेस्ट until we have owned true Swaraj for the hungry and spiritually starving million। राजीव जी ये कहते थे। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कल्चर इज द सोल ऑफ ए नेशन, इट इज व्हाट मेक्स अस हु वी आर एंड गिव्स अस ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी। यही हमारा देश की परंपरा होते हैं। ये परंपरा को हमें बचा के रखना चाहिए। मैं मालदीव की बात करते थे तो आपने चिल्लाने लगे, लेकिन मालदीव की हालत आप देखो। उसके साथ साथ हमारे आजू बाजू में और एक छोटी सी एक अग्निवीर के बारे में भी आप दोबारा सोचिए। ये अग्निवीर के चलते नेपाल के साथ हमारा रिश्ता खराब होते जा रहे हैं। 1947 में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुई थी ब्रिटिश, इंडिया और नेपाल के साथ कि उनकी देश के जवानों को हम अपने फौज में रख सकते, हम अपने फौज में भर्ती करा सकते। लेकिन अग्निवीर के चलते उन लोग थोड़ा परेशानी में है। हमारे काला पानी के लेकर नेपाल से थोड़ा टकराव भी है। चीन चाहते हैं नेपाल के अंदर घुसने के लिए, आप सतर्क रहिए। मैं सब चेताना चाहते हैं, भूटान, नेपाल सब हमारे पड़ोसी देश है। बांग्लादेश में सबमरीन डिप्लोमेसी हो रहे हैं। म्यांमार में कालियापो एक पोर्ट बना रहे हैं। श्रीलंका में हम्मनतोता बन चुके हैं। पाकिस्तान में गदर बन चुके हैं। हम कहाँ जाए? चारों तरफ घेरेबंदी में फंस रहे हैं। मैं मानता हूं आप जरूर प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ठोस कदम उठाने से हमारा लाभ होगी। इसीलिए मैं आपको ये सलाह देना जरूरी समझा और इसलिए सलाह आपको दे रहे हैं। मैं सब ये बात कहते हुए मैं ख़त्म करना चाहते हैं। सर, मैं जानता हूँ अब समय काफ़ी कम है। देखिए, बात यह है कि हमारा देश में सब धर्म के लोग हम मिल के रहें, यही हमारा मकसद है। एक मिनट, एक शाहिर ने कहा था, काबे में रहो या काशी में, निस्बत तो उसी की बात से है। तुम राम कहो या रहीम कहो, मकसद तो उसी की जात से है। ये मान के हम चले। और मैं परशुराम शुक्ल को उनकी एक कविता यहाँ उल्लेख करना चाहते हैं। धरती से सीखा है हमने सबका बोझ उठाना, गगन से सीखा है हमने ऊपर उठते जाना, सूरज की लाली से सीखा जग आलोकित करना, चंदा की किरणों से सीखा सबकी पीड़ा हरना, पर्वत से सीखा है हमने दृढ़ संकल्प
बनाना, और नदी से सीखा है हमने आगे बढ़ते रहना। सागर की लहरों से सीखा सुख दुख को सह जाना, तूफानों ने ये सिखलाया आफत से टकराना। हम आफत से टकराएंगे, हम आगे बढ़ेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। और जहां जहां खामियां देखेंगे, चाहे इस पार हो, कहां कोई रहे, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि अगले बार आप इधर रहोगे, हम उधर रहूंगा, ये मान के अब चलो। सर धन्यवाद सर। मैं राष्ट्रपति शासन जी की ये भाषण में, राष्ट्रपति शासन जी की जो भाषण, राष्ट्रपति शासन जी की ये भाषण, ये राष्ट्रपति जी की भाषण नहीं रही, ये एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बन गया बीजेपी पार्टी की। तो मैं ये इलेक्शन मैनिफेस्टो की विरोध करते हुए अपना वाणी को विराम देता है। नमस्कार। मैंने कहा अतिक्रमण करने का कोशिश हो रहे हैं। लद्दाख से अरुणाचल चाइना ने 3340 किलोमीटर बॉर्डर में अतिक्रमण करने की कोशिश हो रहे हैं। ओके जो हो बोल दिया ना इन्होंने।